السلام علیکم ناظرین، 4 ٹی وی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ سید انوار اللہ غوری۔ آگے بڑھنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ نئے کیمپ آفس کی تعمیر کا وزیر اعلیٰ KCR کے ہاتھوں سنگ بنیاد، تمام سہولتوں کے ساتھ تعمیر کا منصوبہ۔ آٹو اسکیم کے تحت مزید 800 آٹوز کی منظوری، زیر التوا درخواستوں کی یکسوئی کے لیے حکومت کا فیصلہ۔ آندھرا پردیش اسمبلی کے بجٹ اجلاس کا آغاز، گورنر کے خطبے میں ریاست کی ترقی اور حکومت کے بہبودی کارناموں کا تذکرہ۔ کارپوریٹ دواخانے میں انتظامیہ کی لاپرواہی کا واقعہ، مردہ قرار دیے جانے کے بعد نوجوان آیا ہوش میں۔ مسلم خاتون کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے آندھرا پردیش کے وزیر آر کشور بابو کے بیٹے سشیل کے خلاف نربھے ایکٹ کے تحت مقدمہ درج۔ اور عادی رہزنوں کی بین ریاستی ٹولی گرفتار، راجندر نگر پولیس کی کارروائی۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ وزیر اعلیٰ کے چندرا شیکھر راؤ نے اپنے نئے کیمپ آفس کا سنگ بنیاد رکھا۔ موجودہ کیمپ آفس سے متصل اراضی پر ہی نئے کیمپ آفس کی تعمیر عمل میں لائی جا رہی ہے۔ 8.9 ایکڑ اراضی پر یہ کیمپ آفس تعمیر کیا جائے گا۔ اس تقریب میں وزیر اعلیٰ کی اہلیہ چیف سیکریٹری راجیو شرما اور وزیر اعلیٰ کے دفتر کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ کے دفتر سے جاری کیے گئے پریس نوٹ میں بتایا گیا ہے کہ موجودہ کیمپ آفس میں کسی بھی طرح کا اجلاس منعقد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے نئے کیمپ آفس کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بعض اہم اجلاس MCHRD یا پھر 5 ستارہ ہوٹل میں کرنے پڑ رہے ہیں، اور کبھی کبھی بیرونی ریاست کے وزیر اعلیٰ کے کیمپ آفس آنے پر ان کی گاڑی ٹھہرانے کے لیے بھی انتظام نہیں ہے۔ انہی مسائل کے پیش نظر نئے کیمپ آفس کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ حامد انصاری نے زرعی شعبے میں عوامی شراکت داری کے موضوع پر منعقدہ سیمینار سے خطاب کیا۔ شہر میں منعقدہ سیمینار میں نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ ہندوستان کی ترقی اور سماجی معاشی حالات کو بہتر بنانے کے لیے زرعی شعبے کی ترقی ضروری ہے۔ نائب صدر جمہوریہ نے زرعی شعبے میں عوامی سرمایہ کاری پر زور دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ سرمایہ کاری میں اضافے سے زرعی شعبے میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ اس سے پہلے بیگم پیٹ ایئرپورٹ پہنچنے پر وزیر اعلیٰ کے چندرا شیکھر راؤ نے نائب صدر جمہوریہ حامد انصاری کا استقبال کیا۔ ریاستی حکومت نے محکمہ اقلیتی بہبود کی آٹو اسکیم کے تحت حیدرآباد اور رنگا ریڈی اضلاع کے مزید 800 آٹوز منظور کیے ہیں۔ اس سلسلے میں محکمہ آٹوز نے احکام جاری کرتے ہوئے بتایا کہ سابق میں 1000 آٹوز منظور کیے گئے تھے اور 783 درخواستیں زیر التوا تھی۔ اسی کے پیش نظر مزید 800 آٹوز کی منظوری کا فیصلہ کیا گیا۔ احکام کے مطابق ان آٹوز کے رجسٹریشن کا عمل 120 کے اندر مکمل کر لیا جائے گا۔ TRS کے لیڈر ڈی سرینیواس نے کہا ہے کہ مہاراشٹر حکومت کے ساتھ دونوں ریاستوں کے درمیان آبپاشی پروجیکٹس کے تنازعات کی یکسوئی کی جائے گی۔ ڈی سرینیواس نے یہ بھی کہا ہے کہ آندھرا پردیش حکومت کے ساتھ بھی پائے جانے والے آبی مسائل کی یکسوئی پر تلنگانہ حکومت سنجیدگی کے ساتھ توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 2 یا 3 سالوں کے درمیان ریاست میں مجوزہ آبپاشی پروجیکٹس کو مکمل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ریاست کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے وزیر اعلیٰ KCR انتھک جدوجہد کر رہے ہیں۔ ڈی سرینیواس نے وزیر اعلیٰ کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ KCR ہی وہ واحد شخص ہیں جنہیں پتہ ہے کہ مسائل کس طرح سے حل کیے جاتے ہیں۔
आंध्र प्रदेश असेंबली के बजट इजलास का हफ्ते को रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन के खुतबे से आगाज हुआ। गवर्नर ने अपने खुतबे में कहा है कि रियासत की जामे तरक्की से मुताल्लिक फैसला लेने के लिए ये इजलास होने जा रहा है। अपनी इब्तदाई तकरीर को तेलुगु में करने के बाद गवर्नर ने अंग्रेजी जबान में अपनी तकरीर को जारी रखा। गवर्नर ने कहा कि रियासत की तकसीम के बाद रियासत ने गैर मामूली तरक्की हासिल की है। बहबूदी प्रोग्रामों को भी हुकूमत ने आवाम तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा है कि रियासत की तकसीम के बाद सिर्फ 46% फंड्स आंध्र प्रदेश को हासिल हुए हैं। पोलावरम प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा हासिल हुआ है। गवर्नर ने कहा है कि खुसूसी दर्जा देने और विशाखापट्टनम में खुसूसी रेलवे जोन के वादे को मरकजी हुकूमत की तरफ से पूरा किया जाना अभी बाकी है। गवर्नर ने कहा है कि हुदहुद तूफान की वजह से विशाखापट्टनम को 70,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। बाद में कई अजला खुश्कसाली से मुतासिर हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि कापू तबके के तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ गवर्नर ने कहा है कि इस मसले की एकसुई के लिए जस्टिस रंगनाथ कमीशन का क़याम अमल में लाया गया और 8 महीने के बाद कमेटी की रिपोर्ट मौसूल होने के बाद इक़दामात किए जाएंगे। तेलुगु देशम हुकूमत पर धांधलियों का इल्जाम लगाते हुए YSRCP के अरकान मुक़न्नना ने जगन मोहन रेड्डी की क़ियादत में रविंद्र भारती से असेंबली तक मार्च किया। YSRCP के अरकान अपने गलों में सियाह खंडवे पहने हुए थे। इस मौके पर जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि नए दारुल हुकूमत के नाम पर कारोबार किया जा रहा है। किसानों और दलितों से जबरन अराजी हासिल की गई और अब इसकी आड़ में कारोबार हो रहा है। जगन ने इल्जाम लगाया कि दूसरी पार्टी के अरकान को तेलुगु देशम में शामिल करने के लिए करोड़ों रुपयों का लालच दिया जा रहा है। आंध्र प्रदेश असेंबली के बजट इजलास के आगाज से कबल वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने NTR घाट पहुंचकर बानी तेलुगु देशम NTR की समाधि पर फूल निछावर किए। इस मौके पर पार्टी के अरकान मुक़न्नना भी मौजूद थे। बाद में वजीर आला असेंबली पहुंचे। खम्मम और वरंगल के बलदी इंतखाबात की इतवार को होने वाली रायदही के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। खम्मम के 50 डिवीजन्स के लिए 291 उम्मीदवार मैदान में हैं और 265 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। वोटिंग मशीनों पर प्रिंटर भी लगाया जा रहा है। 2,65,000 राय दहिंदे अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। वरंगल कारपोरेशन के 58 वार्ड्स के लिए 1,111 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। अचमपेट में 20 डिवीजन्स के लिए 20 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं, जहां पर 18,614 वोटर्स अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। सुबह 7 बजे से रायदही का आगाज होगा। टेट इम्तिहान में शिरकत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने 9 अप्रैल को इम्तिहान मुनाकिद करने का मुतालबा किया है। उम्मीदवारों ने हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि वो टाल मटोल की पॉलिसी पर अमल कर रही है। उम्मीदवारों ने इंतबाह दिया है कि अगर टेट और DSC का एलामिया जारी नहीं किया गया तो बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि गुज़िश्ता 2 साल से DSC का एलामिया जारी ना करते हुए तुलबा को परेशान किया गया है। हुकूमत के इस रवैये की वजह से 4,70,000 नौजवान बेरोजगार हैं। एक्साइज ड्यूटी में इजाफे के खिलाफ शहर में सोने चांदी की दुकानों के मालिकान का एहतजाज जारी है। मरकजी हुकूमत की तरफ से पेश किए गए बजट में एक्साइज ड्यूटी में 1% का इजाफे का ऐलान किया गया था। हफ्ते को शाली बंडा, गुलजार हाउस और बेगम बाजार में ताजरीन की तरफ से एहतजाज करते हुए एक्साइज ड्यूटी में इजाफे के फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया गया। ताजरीन ने इंतबाह दिया कि साबिक में भी 21 दिन तक एहतजाज किया गया था और अगर अब हुकूमत उनके मुतालबे को कबूल नहीं करती है तो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए उनका एहतजाज जारी रहेगा।
ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। महकमे बरकी की जानिब से मुराली नगर, खिलवत, गाजी मिल्लत, पेटला बुर्ज, कंदीकल गेट में बरकी के मरम्मती काम किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से 6 मार्च को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक मुराली नगर, दूध बावली, गोला खिड़की, कबूतर खाना, पुराना पुल, इकबालुद्दौला की देवड़ी, मिल्लड़ की तालीम, हिम्मतपुरा और फतेह दरवाजा में बरकी सरबराही मजदूद रहेगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक गाजी मिल्लत कॉलोनी और चंद्रैन गुट्टा के इलाकों में बरकी सरबराही नहीं रहेगी। रुकने असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने मलकपेट सरफकास पलटन में मुकामी मजलिस के ताउन से मुनक्किद किए गए मेडिकल कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुताल्लिका रुकने बल्दिया मिन्हाजुद्दीन भी इस मौके पर मौजूद थे। रुजू होने वालों को दवाएं मुफ्त में फराहम की गई। बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन के हुदूद में मुस्लिम खातून के साथ बदतमीजी और नाशाइस्ता सलूक के जिम्मेदार आंध्र प्रदेश के वजीर आर किशोर बाबू के बेटे आर सुशील बाबू और उसके ड्राइवर रमेश के खिलाफ निर्भया एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ताहम अभी तक सुशील पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है और वो मफरूर बताया गया है। सुशील के खिलाफ पुलिस ने घेरा तंग कर दिया है और उसकी तलाश शिद्दत से शुरू कर दी गई है। डीसीपी वेस्ट जोन वेंकटेश्वर राव ने बताया है कि सुशील और रमेश के खिलाफ दफा 354 और 509 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा है कि सुशील के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। बताया गया है कि सुशील को पकड़ने के लिए 3 खुसूसी टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। इससे पहले पुलिस ने हफ्ते की सुबह सुशील कुमार को नोटिस भी जारी की थी। कारपोरेट दवाखानों के जिम्मेदारों का इंसानों के साथ हैवानी बर्ताव का एक शर्मनाक वाकया मंजर आम पर आया है। यशोदा दवाखाना मलकपेट के डॉक्टर्स ने खुद गर्जी और रकम के लिए अपने पेशे से नाइंसाफी की एक मिसाल कायम की है। चंद रोज कबल सड़क हादसे का शिकार जख्मी नौजवान को कहीं भी ले जाओ कहकर दवाखाने के बाहर डाल दिया गया। तफसीलात के मुताबिक चंद रोज कबल तार नाके पर मोटरसाइकिल हादसे में एक नौजवान की मौत हो गई थी और दूसरा शिवा नामी नौजवान शदीद जख्मी हो चुका था, जिसके इलाज पर कसीर रकम तलब कर ली गई। शिवा के दिमाग पर शदीद चोटें आई और वो कोमा में हैं। हफ्ते की सुबह मजीद रकम तलब की गई और अफराद खानदान ने रकम अदा करने से माजूरी जाहिर की। कुछ देर बाद उन्हें दवाखाने से फोन किया गया और इंतहाई रफ लहजे में बात करते हुए कहा गया कि सब कुछ खत्म हो गया है, शिवा को घर ले जाओ। घर वाले ये समझे कि उनका लड़का फौत हो गया है। वो अपने गांव से आखिरी रसूमात का सामान लेकर दवाखाना पहुंचे, जहां उन्हें ये पता चला कि शिवा जिंदा है, जिस पर ये लोग इंतजामिया पर बरहम हो गए, जिसे देखकर दवाखाने की जानिब से पुलिस तलब कर ली गई। पुलिस ने भी एक तरफा कार्रवाई करते हुए शिवा के घर वालों से कहा कि किसी दूसरे दवाखाने को लेकर जाओ। शाम 6 बजे तक भी मरीज बाहर एम्बुलेंस में था और अफराद खानदान की दवाखाने के अमले से तकरार चल रही थी। బతికున్నారు సార్. చచ్చిపోయిందని చెప్తున్నారు కదా. చెప్పిండ్రు వాళ్ళు, ఇప్పుడు బతికే ఉన్నారు సార్ బాబు. ఇప్పుడు మీరు వయసులోనే సార్ అక్కడ కాలు చేతులు ఆడిస్తున్నాడు కదా, డాక్టర్ చెప్పిండు, పెద్ద డాక్టర్ చచ్చిపోయిందని తీసుకెళ్ళండి అయిపోయింది కూడా అని చెప్పేసి అంతే. చచ్చిండు అంటేనే మేము డీసీఎం గిట్టిఎం అన్నీ తెచ్చినాం, కట్టుకొని ఇంకా బట్టలు కూడా తెచ్చేసాం సార్, లేకుండా మేము ఎందుకు తెస్తాం. राजेंद्र नगर पुलिस ने आदि रहजरों की बैन रियासती टोली के एक रुकन को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी शमशाबाद पुलिस AR श्रीनिवास ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने 5 मार्च की सुबह 2 रहजरों का पीछा करके एक रहजन गोविंद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी संजू कुमार उर्फ संजय फरार होने में कामयाब रहा। उन्होंने बताया कि गोविंद का ताल्लुक बावरिया गैंग से है, जो मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर रहजनी की वारदातें अंजाम दे चुके हैं।
उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस ने इस गैंग को एक वाक़ये में गिरफ्तार किया था और उनके खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट्स भी ज़ेर इल्तिवा हैं। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा रहजन ने दिसंबर 2015 में राजेंद्र नगर, मेलार देवपल्ली, शमसाबाद, लंगर हाउस, कुलसुमपुरा, टप्पा चबूतरा, मीर चौक और छतरीनाका पुलिस हुदूद में रहजनी की वारदातें अंजाम दी हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की मदद से गिरफ्तारी अमल में लाई है। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा रहजन के कब्जे से 25 तोले के तिलाई जेवरात, एक मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। उन्होंने बताया कि शहर के मुख्तलिफ पुलिस हुदूद में गोविंद के खिलाफ 27 केसेस हैं। पुलिस को मफरूर संजय की तलाश है। उपल पुलिस ने नकली वीजे की तैयारी में मुलविस 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी रामचंद्र राव ने बताया कि गंगाधर भूमा रेड्डी और कृष्णा प्रसाद बैरूनी मुमालिक में मुलाजिमत का झांसा देकर जरूरतमंदों से रकम हड़प लिया करते थे और नकली वीजे तैयार किया करते थे। पुलिस ने तीनों मुलजिमीन के कब्जे से 45 पासपोर्ट्स और 80,000 रुपये की नकद रकम को जब्त कर लिया है। बंजारा हिल्स के सैयद नगर इलाके में सरके की वारदात अंजाम देने के दौरान पकड़े गए चोर को खुद साख्ता सहाफी की तरफ से बचाने की कोशिश की जा रही है। तफसीलात के मुताबिक मकान में शोएब नामी चोर के दाखिल होने पर मकीनों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। बाद में खुद साख्ता सहाफी ने मुतासिरा मकीनों को शिकायत वापस न लेने पर संगीन नतायज की भी धमकी दे डाली। ताज्जुब की बात यह देखने में आई कि मामूली मुकदमा दर्ज करने के बाद चोर को छोड़ दिया गया। मुतासिरा मकीनों ने डीसीपी से मुलाकात करते हुए खुद साख्ता सहाफियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की दरखास्त की है। कुकटपल्ली में तामीरी काम के दौरान मजदूर चौथी मंजिल से गिरकर हलाक हो गया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त महबूब नगर के साकिन 28 साला शेख रशीद की हैसियत से की गई है। बताया गया है कि निजाम पेट में अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से गिर जाने से शेख रशीद की मौत हुई है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। साउथ जोन टास्क फोर्स की टीम ने गैर कानूनी तौर से ड्रग तैयार करके फरोख्त करने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल डीसीपी एन कोटी रेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने 34 साला सच्चू राय, 40 साला मुकेश अग्रवाल और 30 साला शेख अब्दुल खालिद को गिरफ्तार किया है, जबकि उनका एक साथी रियासत उत्तर प्रदेश का रहने वाला मोहसिन फरार होने में कामयाब रहा है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने एक मुसद्दका इत्तला पर कार्रवाई करके बहादुरपुरा और मादन्नापेट के यूनिट्स पर धावा किया, जहां ऑक्सीटोसिन स्टेरॉइड्स तैयार करके फरोख्त की जाती थी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा अफराद बगैर इजाजत और लाइसेंस के मज़कूरा दवा को तैयार कर रहे थे। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से ऑक्सीटोसिन स्टेरॉइड्स की 1000 बोतलें, दवा में इस्तेमाल होने वाले एसिड के अलावा दूसरी अशिया भी बरामद कर ली हैं। पुलिस को मफरूर मोहसिन की तलाश है। जुमेरात की अलग सुबह सिकंदराबाद के स्वप्नालोक कॉम्प्लेक्स के पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर संजय के कत्ल में मुलविस 4 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किए जाने की इत्तला मिली है। जराये के मुताबिक संजय के कत्ल के मौके पर जो मुश्तबा गाड़ी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी वो तालाब कट्टे के इलाके से बरामद हुई है। इसके बाद पुलिस ने भवानी नगर से ताल्लुक रखने वाले 4 अफराद को तहवील में ले लिया है। बताया गया है कि जिन मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है वो पहले भी मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस रहे हैं। बताया गया है कि संजय ने पंजागुट्टा के पास मुश्तबा मुलजिमीन से लिफ्ट मांगी थी और समझा यह जा रहा है कि इसी दौरान ही गाड़ी में बैठने के बाद बहस व तकरार हुई
اور گاڑی میں سوار افراد نے سنجے کو گاڑی سے اترنے کے بعد اپنا نشانہ بنایا۔ ابھی ملزمین کے ناموں کی شناخت نہیں کی گئی ہے، لیکن پولیس ان سے مسلسل پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ شوہر کی ہراسانی سے تنگ آ کر ایک سافٹ ویئر خاتون ملازمہ نے خودکشی کر لی ہے۔ تفصیلات کے مطابق چندا نگر کی ساکن سافٹ ویئر ملازمہ ملیشوری نے اپنے مکان میں پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ بتایا گیا ہے کہ ملیشوری کا شوہر نند کمار موہت ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازم ہے۔ متوفیہ ضلع گنٹور کی تاڑے پلی کی ساکن بتائی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ نند کمار مہاراشٹر کا متوطن ہے اور وہ شہر میں ملازمت کر رہا تھا۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ نئے کیمپ آفس کی تعمیر کا وزیر اعلیٰ KCR کے ہاتھوں سنگ بنیاد، تمام سہولتوں کے ساتھ تعمیر کا منصوبہ۔ آٹو اسکیم کے تحت مزید 800 آٹوز کی منظوری، زیر التوا درخواستوں کی یکسوئی کے لیے حکومت کا فیصلہ۔ آندھرا پردیش اسمبلی کے بجٹ اجلاس کا آغاز، گورنر کے خطبے میں ریاست کی ترقی اور حکومت کے بہبودی کارناموں کا تذکرہ۔ کارپوریٹ دواخانے میں انتظامیہ کی لاپرواہی کا واقعہ، مردہ قرار دیے جانے کے بعد نوجوان آیا ہوش میں۔ مسلم خاتون کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے آندھرا پردیش کے وزیر کشور بابو کے بیٹے سشیل کے خلاف نربھے ایکٹ کے تحت مقدمہ درج۔ اور عادی رہزنوں کی بین ریاستی ٹولی گرفتار، راجندر نگر پولیس کی کارروائی۔ اور اسی کے ساتھ ہی 4 TV خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ سید انوار اللہ غوری کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔